Hello, my children. How are your children? All are fit and fine? Good. Take care of yourself. Students, you are welcome to our history class. In the previous session, you heard about the production of chronicles, in which you were told about the language, how Persian language was given importance. You were also told about the manuscripts, in which different people who were skilled in different fields, they were involved in the creation of manuscripts. You were also told about the painted image, where the writer used to write the matter, and wherever required he used to leave space where the painting was done by the painters, and the paintings were done in such a lively way that it attracted the readers towards it. Even we can say that the lively painting also made the matter more interesting, more clear. But children, that created tension between the ruler and the Orthodox Muslims, about which you heard in the previous session. So today we have to start a new point. Point number 4, the Akbarnama and the Badshahnama. Point number 4, the Akbarnama and the Badshahnama. आज का विषय है अकबरनामा और बादशाहनामा. Children, as you were told that the Mughal rulers, they used to preserve the accounts written by the people who were commissioned by them. You were told that how the Mughal rulers used to commission the writers to prepare the details, the accounts related to the events which were taking place in the reign. आपने पीछे सेशन में सुना किस प्रकार मुगल शासक अपने दरबार में लेखकों को इस बात के लिए आदेश देते थे कि दरबार में होने वाली, साम्राज्य में होने वाली सभी घटनाओं का लेख तैयार किया जाए. इस परिप्रेक्ष्य में आपने ये भी सुना था कि इन लेखों को तैयार करने के कई कारण थे, जिसके बारे में आपने कल के सेशन में सुना है. So related to this, our today's topic is the Akbarnama and the Badshahnama. Children, among the illustrated chronicles, the Akbarnama and the Badshahnama are most popular. They are well known. जितनी भी चित्रित कथाएं हैं उनमें बादशाहनामा और अकबरनामा काफी लोकप्रिय हैं. In which each manuscript is written in around at least 150 full or double pages. करीब manuscript की जो भी वर्णन लिखा गया वह 150 पेजों का, कभी कभी दोहरे पेज में चित्रित कथाओं का वर्णन उसमें किया गया है. In which the picture relates to the events taking place in the reign of the ruler, related to the court scene, the battles, the royal palace, architectural work, etc. And it is said that the Akbarnama, you must be knowing about it. Akbarnama, who wrote it? Abul Fazl. So Abul Fazl was the writer of Akbarnama. Abul Fazl, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उन्होंने अकबरनामा लिखा. And
He was well versed in many languages such as Arabic, Persian, and he was a Greek philosopher as well as a sophism. उन्हें अरबी और फारसी भाषाओं का ज्ञान था। यूनानी दर्शन के साथ उनमें उनको वो सूफीवाद में भी काफी आप कह सकते हैं योग्यता रखते थे, इनके बारे में जानकारी उन्हें थी। नॉट ओनली दिस, ही वॉज अ फोर्सफुल डिबेटर। उनकी जो भी वो विवाद करते थे वो अत्यंत प्रभावशाली था, जिसमें उनका पूरा कॉन्फिडेंस दिखाई देता था। एंड ही वॉज एन इंडिपेंडेंट थिंकर। वो स्वतंत्र चिंतक थे। वो कभी किसी अन्य चिंतक की धारणाओं से प्रभावित होकर अपने किसी अंश को उन्होंने नहीं लिखा। वो एक स्वतंत्र चिंतक थे। एंड ही ऑलवेज अपोज द व्यूज ऑफ द कंजर्वेटिव उलमास अबाउट विच यू हर्ड यस्टरडे ऑल्सो। उन्होंने जो उलमा, जो मौलाना थे, जो रूढ़िवादी विचारों के थे, उनको उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, अस्वीकृत किया। सो सीइंग टू हिज एफिशिएंसी द कैपेबिलिटीज ऑफ अबुल फजल, Akbar was very impressed. So he found him fit that he can be an advisor and the spokesman of his policies. अबुल फजल की इन योग्यताओं से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें सोचा कि यह उनका सलाहकार के साथ साथ नीतियों का भी प्रवक्ता बनाए जाने की योग्यता रखता है। अतः उन्होंने अपने दरबार में उन्हें एक दरबारी के रूप में नियुक्त किया, अर्थात वह 9 रत्नों में से एक। He was one of the 9 jewels of Akbar's court. And you know very well that Akbar was a tolerant ruler. आप जानती हैं सम्राट अकबर एक धार्मिक सहिष्णु शासक थे। So he wanted his state to be free from the control of religious orthodox. वो चाहते थे कि उनके साम्राज्य में जो रूढ़िवादी विचार हैं, जो पीछे की परंपराएं हैं, जिनमें ऊंच नीच जात पात का भेदभाव है, उसको किसी भी तरह से समाप्त किया जाए, सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार दिया जाए। इसके बारे में आप जानती होंगी। इसी परिप्रेक्ष्य में आपकी उनकी धार्मिक नीति थी, दीन-ए इलाही की उन्होंने स्थापना की। ये सारी उनकी धार्मिक सहिष्णुता का एक प्रमाण देते हैं। In the beginning, अबुल फजल worked on अकबरनामा for 13 years. आरंभ के 13 वर्षों में अबुल फजल ने अकबरनामा के संस्करण लिखने में व्यतीत किया। And he revised the drafts and amended it wherever it was required. लिखने के बाद उन्होंने उसे बार बार उसको रिवाइज किया, उसको दोहराया, और जहां भी सुधार की आवश्यकता थी, संशोधन की आवश्यकता थी, अबुल फजल के द्वारा किया गया। So Akbarnama was divided into 3 books. The first 2 books are chronicles. अकबरनामा के 3 किताबें हैं, जिसमें पहली और दूसरे काल चक्र के हिसाब से हैं, जो काल की घटनाएं हैं, आरंभ से लेकर उनके युद्ध के काल तक की घटनाओं का उसमें वर्णन है। And the third book is known as Ain-e-Akbari. And children, you must be knowing that Abul Fazl was too loyal to Emperor Akbar. But unfortunately, he was hatched by the Prince Salim and he was murdered by वीर सिंह बुंदेला। कहा जाता है, और ये सच है, आप जानती हैं, कई प्रमाण है इसके इतिहास में, कि अबुल फजल अकबर का न केवल प्रिय बल्कि वह एक विश्वसनीय दरबारी था। लेकिन किन्हीं कारण से शहजादा सलीम ने अबुल फजल के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उनके उसी षड्यंत्र में उनका साथ देने वाले वीर बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या कर दी गई, जिसका अकबर को काफी आघात पहुंचा। अकबर was too shocked to hear this, to face this, that how Abul Fazl was killed, in which his son was also involved. Now children, Akbarnama is the description of the Akbar's reign. अकबरनामा में अकबर के शासनकालीन घटनाओं का वर्णन है, and it also describes the aspects of Akbar empire related to social, cultural development and administration. इनमें अकबर के काल की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक
हर एक पक्षों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। And Aine Akbari presents Akbar as a tolerant ruler. As you know that Akbar was a tolerant ruler. Many incidents you must be knowing about Akbar, where he proved that he was a tolerant ruler. Just now I told you about his religious policy and about Deen-e-Ilahi, which proved that he was a tolerant ruler. So in his reign, the diverse population used to be there. अकबर का साम्राज्य मिश्रित संस्कृतियों वाला एक साम्राज्य था, जहां हर एक धर्म के लोग आराम से स्वतंत्रता से रहते थे। हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, हर एक धर्म को मानने वाले, अलग अलग परंपराओं को मानने वालों के बीच भी कभी भेदभाव नहीं देखा गया। अकबर ने सदैव इस बात का प्रयास किया कि लोगों में समानता बनी रहे, धर्म और जाति के आधार पर कभी किसी के बीच कोई भी मनमुटाव न आने पाए। Abul Fazl, he wrote in a language which attached the importance to diction and rhythm. आप जानती हैं अबुल फजल की भाषा बड़ी ही अलंकृत थी, जिसे ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था और लय और कथन शैली का भी उनकी भाषा में जो भी कुछ उनके द्वारा लिखा गया उसका विशेष ध्यान रखा गया, अर्थात वह अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। So this Indo-Persian style was patronized at court. यही जो आपकी भारतीय फारसी शैली, जो मिश्रित शैली थी, उसे दरबार में संरक्षण मिला। आपने इसके बारे में कल भी पढ़ा है। You heard about that how the Persian language was Indianized. About this you heard in yesterday's session also. So the way Abul Fazl wrote, the system, the pattern, the format which was followed by Abul Fazl was also followed by the other writers. जो दूसरे लेखक थे वे भी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई शैली का जिस तरह उन्होंने प्रयोग किया, किस प्रकार से उन्होंने कथा का वर्णन किया, किस भाषा शैली से लोगों को प्रभावित किया, आकृष्ट किया, इसका भी अन्य लेखकों के द्वारा फॉलो किया गया। वे उन अपने जो भी वो लिखना चाहते थे, जिस भी लेख को वो लिखना चाहते थे, वे अबुल फजल के द्वारा अपनाई गई शैली को भी अपनाने का उन्होंने हर संभव प्रयास किया। So students, till now you have heard about Akbarnama. Now I'll be telling you about बादशाहनामा। अब हम आपको बादशाहनामा के बारे में बताएंगे। As you heard about Abul Fazl, that how he worked hard, what were his talents, which was really something to be followed. अभी आपने अबुल फजल के बारे में सुना, उनकी कृति के बारे में सुना, उनकी योग्यताओं के बारे में सुना, उनकी लेखन कला के बारे में सुना जो अति अनुकरणीय है। Now you will be hearing about बादशाहनामा. So children, a disciple of Abul Fazl, who was he? Abdul Hamid Lahori. He was the author of बादशाहनामा. अबुल फजल का एक शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाहनामा का लेखक है। So as I told you that other writers were also trying to follow the pattern of Akbarnama, the format of Akbarnama. So seeing to Akbarnama, Shah Jahan was impressed. And he was also impressed by Abdul Hamid Lahori. So he commissioned him to his court and made him write the history of his reign on the pattern of Akbarnama. शाहजहां, जिसके बारे में आप जानती हैं, वह अब्दुल हमीद लाहौरी की योग्यताओं से भी परिचित थे और अकबरनामा जिस तरह लिखा गया उससे भी वे काफी प्रभावित थे। तो उन्होंने अब्दुल हमीद लाहौरी को अपना दरबार में सभी घटनाओं का वर्णन करने के लिए बादशाहनामा में अकबरनामा के पैटर्न के आधार पर ही नियुक्त किया। वह चाहते थे कि बादशाहनामा उनके राज्य के सभी गतिविधियों का वर्णन उसमें हो, लेकिन वह अकबरनामा के पैटर्न, उसके फॉर्मेट पर लिखा जाए। सो बादशाहनामा इज द ऑफिशियल हिस्ट्री। बादशाहनामा एक सरकारी इतिहास है जो 3 जिल्दों में लिखा है। इट इज रिटन इन 3 वॉल्यूम्स एंड ईच ऑफ द वॉल्यूम टेल्स अबाउट द 10 years. Each volume contains 10 years
So Abdul Hamid Lahori, he wrote the first and second volume. Abdul Hamid Lahori ने पहली और द्वितीय जिल्द लिखी, in which the first and second decades were from the year 1627 to 1647. अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा जो प्रथम दो जिल्द लिखी गई वह 1627 से 1647 के बीच की घटनाओं का वर्णन उसमें मिलता है. But it was also revised by the Wazir of Shahjahan, who was Sadaullah Khan. उसके जो भी लिखा गया संस्मरण जो लिखा गया उसको पुनः शाहजहां के वजीर सदुल्ला खां के द्वारा पुनः उसको रिवाइज किया गया, संशोधित किया गया. Abdul Hamid Lahori did not write the third volume because of his growing age. He was unable to do so. प्रथम और द्वितीय जिल्द अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया ने तृतीय जिल्द अब्दुल हमीद लाहौरी लिखने में असमर्थ हुए क्योंकि उनकी बढ़ती हुई उम्र के कारण वे स्वस्थ नहीं रहते थे. So the third volume was written by the historian Varis, who chronicled the third decade. So historian Varis was the person who chronicled the third decade. इतिहासकार वारिस ने तृतीय जिल्द पर लेखन कार्य किया. इस प्रकार बादशाहनामा 3 जिल्दों में बनकर तैयार हुआ. So children, during the colonial rule, as you heard that whatever was written by the writers during the Mughal rules, the events related to the reign was preserved. So the British administration, the British who ruled over us, they wanted to study the Indian history and they wanted to get knowledge which also helped them to understand the people and the culture of the empire, means how the rulers ruled. आप जानती हैं कि बहादुर शाह द्वितीय के बाद अंग्रेजों का शासन काल आया. आपने इसके बारे में भी पहले सेशन में सुना है और ये भी आपको बताया गया है कि किस प्रकार मुगल शासकों ने जो कुछ घटनाएं उनके काल में हुई कैसे उन्होंने उसको संरक्षित किया. तो जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारी थे, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वे चाहते थे कि बीते समय की घटनाओं की उन्हें जानकारी मिले जिससे उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाए कि बीते समय के शासकों ने किस प्रकार से शासन किया. वो सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानना चाहते थे. इसलिए सर William Jones, who was the founder of Asiatic Society of Bengal in 1784, he had put lots of effort related to the manuscript. आप जानती हैं सर विलियम जोन्स जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक 1784 में उन्होंने संस्थापना की, उनके द्वारा इन पांडुलिपियों का जो संस्करण था उसकी एडिटिंग करना, पेंटिंग अकॉर्डिंग टू द नीड एंड इवन द ट्रांसलेशन जो उसका अनुवाद करना था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा उसमें विशेष भूमिका निभाई गई सर विलियम जोन्स के द्वारा. द एडिटिक वर्स ऑफ अकबरनामा एंड बादशाहनामा was first published by Asiatic Society in 19th century. तो जो नवीन संस्करण था अकबरनामा और बादशाहनामा का वो सबसे पहली बार एशियाटिक सोसाइटी, जिसके बारे में आपने अभी तुरंत सुना, के द्वारा 19वीं शताब्दी में पब्लिश किया गया. And in early 20th centuries, Akbarnama was translated in English by Henry Beveridge. हेनरी बेवरेज के द्वारा आरंभिक 20वीं सदी में अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया. बट नॉट ओनली दिस, there were some parts of Badshah-nama which were translated in English, but the rest of are still to be done. लेकिन इसके साथ ही साथ बादशाहनामा को यह मौका नहीं मिला इस संस्मरण को पूर्ण रूप से उसका अनुवाद किया जाए. कुछ ही अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, बाकी बादशाहनामा के सभी अंश आज भी अनुवाद नहीं किए जा सके. अनुवाद किए जाने का एक लाभ होता, आप जानते हैं कि हर एक भाषा जानने वाले व्यक्ति हर जगह नहीं होते. तो ऐसी भाषाओं में किसी भी ग्रंथ, किसी भी संस्करण का अनुवाद किए जाने से वह लोकप्रिय हो जाती है और जनसाधारण तक उसके संदेश को, उसके इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में भी सहायता मिलती है.
Thank you, children. God bless you.